हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर मीनाक्षी और आज के अपने इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मैचुरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इनटू पॉलन ग्रेन की प्रोसेस के बारे में। ऑलराइट, मेरे पिछले वीडियोस के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उन्हें क्लिक करके आप उन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं सो दैट मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी मिलती रहे। अब जो मैचुरेशन इनटू पॉलन ग्रेन है वो एक स्पेसिफिक प्रोसेस है। हमें पता है पॉलन ग्रेन मेल गमीटोफाइट है। सो किस तरीके से मैच्योर होता है माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन में, वो हम अब बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Hi guys, so in this video of mine we are going to talk about the structure of pollen grain. Okay, मेरे previous video में हमने microsporogenesis या formation of microspore के बारे में पढ़ा था, तो उसी का one step further है the maturation of microspores into pollen grains. So we are going to talk about this. The pollen grains represent the male gametophyte. Now what do you mean by gametophyte? Gametophyte वो होते हैं जिसके अंदर male gametes present होते हैं. Okay, so male gametophyte is pollen grain. If you touch the opened anthers of hibiscus or any other flower, you would find deposition of yellowish powdery pollen grains on your fingers. So क्या कलर होता है इनका? यूजली येलोइश होते हैं और पाउडरी होते हैं. Sprinkle these grains on a drop of water and take on a glass slide and observe under a microscope. So you're going to see this pollen germination वाली slide आप बनाओगे अपने practicals. You will be amazed at the variety of architecture, sizes, shapes, colors, designs seen on the pollen grains from different species. As you can see in the figure, ये सारे pollen grains हैं और इनके different shapes and sizes हैं और इनके ऊपर जो designs हैं, colors हैं, वो भी बहुत ज़्यादा different हैं. So talking about the structure of pollen grains are generally spherical in shape and they measure about 25 to 50 micrometer in diameter. ये इनका size होता है. It has a prominent two-layered wall. दो two-layered wall present होती है. Outer hard layer is known as exine, very important, and it is made up of sporopollenin, which is one of the most resistant organic materials known. It can withstand high temperatures and strong acids and alkali. No enzyme that degrades sporopollenin is so far known. Alright, so यहाँ पे एक बहुत important question आता है, why can pollen grains be preserved as fossils? So question क्या है? Why can pollen grains be preserved as fossils? Alright, so इनको fossils की तरह preserve क्यों किया जा सकता है? क्योंकि इनका जो outer layer है वो किससे बना होता है? एक्साइन से. ऑलराइट, एंड एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन जो कि बहुत रेजिस्टेंट है. उसके ऊपर किसी भी टेम्परेचर, एसिड या एंजाइम का इफेक्ट नहीं होता. अब जहाँ पर एक्साइन एब्सेंट होती है उस एरिया को बोलते हैं जर्म पोर, वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट. Pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollenin. तो यहाँ पे ये आंसर आ गया. Okay, the exine exhibits a fascinating array of patterns and designs. Why do you think the exine should be hard? क्योंकि pollen grains जो हैं उन्होंने under harsh conditions survive करना होता है, इसीलिए exine hard होती है. And what is the function of germ pore? Function of germ pore is कि इसी germ pore के through pollen tube जो है वो बाहर आएगी. So the function of germ pore is to ensure that the pollen tube comes out of the pollen grain. Right now, inner wall का क्या बोलते हैं? intine. जो intine है वो thin है, continuous है, कोई germ pore present नहीं होता. and किससे बनी होती है? cellulose और pectin से. right, so हमने पढ़ा it has two layers. जो outer layer और exine है वो किसकी बनी है? sporopollenin की. और जो inner layer और intine है, intine किसकी बनी है? सेल्यूलोज की. ओके, सो इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन. क्लियर? सो ये हमने याद रखना है. द साइटोप्लाज्म ऑफ द pollen grain is surrounded by a plasma membrane. When the pollen grain is mature, it consists of two cells, vegetative cell and generative cell. तो ये जो फिगर है, इस फिगर में हम लोग एक्चुअली क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ माइक्रोस्पोर इनटू अ मैच्योर pollen grain. राइट, सो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव सेल जो है वो बड़ा होता है. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेजिटेटिव सेल. इट इज़ बिगर इन साइज
and has abundant food reserve and large irregularly shaped nucleus. ये है यहाँ पे इसका न्यूक्लियस, ओके, ये है यहाँ पर इसका न्यूक्लियस, ओके. सो नाउ द जेनरेटिव सेल जो है वो क्या होता है, स्मॉल होता है एंड इट इज फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द vegetative cell. This is the generative cell, right? It is spindle shaped with dense cytoplasm and a nucleus, right? In over 60% of angiosperms, the pollen grains are shed at this two cell stage. कौन सी two cell stage है? Vegetative cell and generative cells. In the remaining species, the generative cells divide mitotically to give rise to two male gametes before the pollen grains are shed. और इसको क्या बोलते हैं? Three cell stage. So usually ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में टू सेल स्टेज पे जो पॉलन ग्रेन है वो शेड हो जाता है, बट कुछ केसेस में शेडिंग से पहले जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है इनटू टू मेल गमीट्स मेकिंग टोटल 3 सेल्स. तो उसको क्या बोलते हैं? 3 सेल स्टेज. अब हम बात करते हैं मैच्योरेशन की प्रोसेस कैसे होती है. ये जो है ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है, ऑलराइट. दिस इज द माइक्रोस्पोर टेट्राड. इस माइक्रोस्पोर टेट्राड का हर एक 4 सेल्स हैं यहाँ पे. ये चारों के चारों आर क्या बन सकते हैं? मैच्योर पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो सकते हैं. मान लो हमने इनमें से एक सेल ले लिया, सारे बाकी 3 सेल्स भी यही प्रोसेस फॉलो करेंगे. सबसे पहले दिस इज वन माइक्रोस्पोर, वी कॉल इट अ माइक्रोस्पोर, राइट. दिस इज अ माइक्रोस्पोर. अगेन माइक्रोस्पोर से क्या होता है आगे? वैक्यूल्स जनरेट हो जाते हैं, वैक्यूल्स इमर्ज, और जिससे क्या हो जाता है? न्यूक्लियस टर्मिनलाइजेज. दैट मीन्स जो न्यूक्लियस है वो टर्मिनल पोजीशन पे चला जाता है. पहले न्यूक्लियस सेंट्रली प्लेस था यहाँ पे, पर क्या हुआ? जैसे जैसे वैक्यूल्स एमर्ज हुए ये न्यूक्लियस जो है वो क्या हो गया? टर्मिनलाइज हो गया, एक टर्मिनल पोजीशन पे चला गया. उसके बाद यहाँ पर क्या शुरू हो जाती है? न्यूक्लियर डिविजन. जो न्यूक्लियर डिविजन है, न्यूक्लियर डिविजन में ये माइटोटिक डिविजन हो गया, तो यहाँ पे एसिमेट्रिक स्पिंडल बन गया. और उसके बाद फाइनली क्या होती है? सेल डिवीजन, जो कि क्या होती है? अनइक्वल बाय द लेइंग ऑफ ऑब्लिक वॉल. ठीक है. सो सेल डिवीजन इज बाय द लेइंग ऑफ ऑब्लिक वॉल. और इससे एक बिगर वेजिटेटिव सेल जनरेट होता है और एक स्मॉलर जनरेटिव सेल जनरेट होता है, जिनके बारे में हमने यहाँ इन डिटेल पढ़ा है. वेजिटेटिव सेल जो है वो फाइनली पॉलन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है, और जनरेटिव सेल्स जो है उससे जनरेट होते हैं 2 मेल gametes. Okay, so this is the process of maturation of pollen grain. और जब pollen grain shed होते हैं तो वो किस स्टेज में होते हैं? 2 सेल स्टेज में अगर होते हैं तो उसमें एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल प्रेजेंट होता है. अगर वो 3 सेल स्टेज में शेड होते हैं तो उनमें एक वेजिटेटिव सेल होता है और 2 मेल गमीट्स प्रेजेंट होते हैं. तो आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से एक माइक्रोस्पोर जो है वो मैच्योर पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होता है. सो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स. ऑलराइट, सो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स में हमने क्या पढ़ना है? सबसे पहले पॉलन ग्रेन्स के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं. ऑलराइट, सो दिस इज द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स, राइट. सो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. ऑलराइट, सो सबसे पहले है पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज कॉज सीवियर एलर्जीज and bronchial afflictions या बीमारियां in some people often leading to chronic respiratory disorders. कौन कौन से disorders हैं? asthma and bronchitis etc. इसमें एक स्पेशल मेंशन है पार्थेनियम या फिर कैरेट ग्रास का, जो कि इंडिया में आया था एज अ कंटामिनेंट विद इम्पोर्टेड वीट, और सबसे ज़्यादा पॉलन एलर्जी जो है ये कॉज करता है. ऑलराइट, उसके अलावा अगर हम इसके बेनिफिट्स देखें तो पॉलन ग्रेन्स जो हैं दे आर रिच इन nutrients, and it has become a fashion in recent years to use pollen tablets as food supplements. In Western countries, a large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market. Pollen consumption has been claimed to increase the stamina. Okay, once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability. तो यहाँ पे हमारा जो है ख़त्म हो गया क्या? पॉलन ग्रेन की जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है. उसके बाद हम बात कर रहे हैं पॉलन ग्रेन्स कब तक जिंदा रहते हैं. एंथर तो डिहाइस हो गया और पॉलन ग्रेन्स जो है वो शेड हो गई. पॉलन ग्रेन्स कितने टाइम तक एंथर के बाहर जिंदा रह सकते हैं? तो यहाँ पे इनकी वेरीड टाइम है वाइबिलिटी के, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पीशीज.
When once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization. So how long do you think the pollen grains retain viability? कितनी देर तक retain कर सकते हैं? The period for which pollen grains remain viable is highly variable and to some extent depends on the prevailing temperature and humidity. किसके ऊपर डिपेंड करता है? कौन से फैक्टर्स हैं? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम तक जिंदा रहेंगे. इन सम cereals such as rice and wheat, राइस और वीट में जो pollen grains हैं वो अपनी viability lose कर देते हैं within 30 minutes. You have to learn this. And in some members of Rosaceae, Leguminosae and Solanaceae, they can retain their viability for months. महीनों तक जिंदा रह सकते हैं. You may have heard of storing semen or sperms of many animals, including humans, for artificial insemination. It is possible to store pollen grains also in pollen banks and under liquid nitrogen, that is at -196 degrees. और इसको अंडर सच कंडीशंस जहाँ पे टेम्परेचर को लो कर दिया जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन. और ये कहाँ स्टोर होते हैं? इन पॉलन बैंक्स. जैसे सीड बैंक्स होते हैं, स्पर्म बैंक होते हैं, उसी तरीके से क्या प्रेजेंट होते हैं? पॉलन banks. Okay, such stored pollen can be used as pollen banks similar to seed banks in crop breeding programs. So यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है. मेरे अगले टॉपिक में हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस की. Until next time, keep on watching and stay tuned. मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं सो दैट मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे. सो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद.